صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن باب کتنے دنوں میں قرآن کریم ختم کیا جائے اس کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ جو انسان آسانی سے پڑھ سکے وہ پڑھے۔ حدیث نمبر 5051 ترجمہ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابن شبرمہ نے بیان کیا جو کوفہ کے قاضی تھے کہ میں نے غور کیا کہ نماز میں کتنا قرآن پڑھنا کافی ہو سکتا ہے، پھر میں نے دیکھا کہ ایک سورت میں 3 آیتوں سے کم نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ رائے قائم کی کہ کسی کے لیے 3 آیتوں سے کم پڑھنا مناسب نہیں۔ علی المدینی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا کہا ہم کو منصور نے خبر دی، انہیں ابراہیم نے، انہیں عبدال الرحمن بن یزید نے، انہیں علقمہ نے خبر دی اور انہیں ابو مسعود نے۔ علقمہ نے بیان کیا کہ میں نے ان سے ملاقات کی تو وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے سورۃ البقرہ کے آخری کی 2 آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن باب کتنے دنوں میں قرآن کریم ختم کیا جائے اس کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ جو انسان آسانی سے پڑھ سکے وہ پڑھے۔ حدیث نمبر 5052 ترجمہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابو انا نے، ان سے مغیرہ بن مقسم نے، ان سے مجاہد بن جبیر نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا کہ میرے والد عمرو بن الاس نے میرا نکاح ایک شریف خاندان کی عورت محمد بنت مہمی سے کر دی تھا اور ہمیشہ اس کی خبرگیری کرتے رہتے تھے اور ان سے بار بار اس کے شوہر یعنی خود ان کے متعلق پوچھتے رہتے تھے۔ میری بیوی کہتی کہ بہت اچھا مرد ہے، البتہ جب سے میں ان کے نکاح میں آئی ہوں انہوں نے اب تک ہمارے بستر پر قدم بھی نہیں رکھا، نہ میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ ڈالا۔ جب بہت دن اسی طرح ہو گئے تو والد صاحب نے مجبور ہو کر اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اس کی ملاقات کراؤ، چنانچہ میں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ روزہ کس طرح رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ روزانہ، پھر دریافت فرمایا قرآن مجید کس طرح ختم کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہر رات۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھو اور قرآن ایک مہینے میں ختم کرو۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بلّہ روزے کے رہو اور 1 دن روزے سے۔ میں نے عرض کیا مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ روزہ رکھو جو سب سے افضل ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کا روزہ، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو اور قرآن مجید 7 دن میں ختم کرو۔ عبداللہ بن عمرو کہا کرتے تھے کاش میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لی ہوتی کیونکہ اب میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں۔ حجاج نے کہا کہ آپ اپنے گھر کے کسی آدمی کو قرآن مجید کا 7واں حصہ یعنی 1 منزل دن میں سنا دیتے تھے، جتنا قرآن مجید آپ رات کے وقت پڑھتے اسے پہلے دن میں سنا رکھتے تاکہ رات کے وقت آسانی سے پڑھ سکیں، اور جب قوت ختم ہو جاتی اور نڈھال ہو جاتا اور قوت حاصل کرنا چاہتے تو کئی دن روزہ نہ رکھتے، کیونکہ آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وعدہ کر لی ہے، 1 دن روزہ رکھنا 1 دن افطار کرنا، اس میں سے کچھ بھی چھوڑیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ بعض راویوں نے 3 دن میں اور بعض نے 5 دن میں، لیکن اکثر نے 7 راتوں میں ختم کی حدیث روایت کی ہے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن باب کتنے دنوں میں قرآن کریم ختم کیا جائے اس کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ جو انسان آسانی سے پڑھ سکے وہ پڑھے۔ حدیث نمبر 5053 ترجمہ ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے محمد بن عبدال الرحمن نے، ان سے ابو سلمہ بن عبدال الرحمن بن عوف نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو بن عاص نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ قرآن مجید تم کتنے دن میں ختم کر لیتے ہو؟ صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن باب کتنے دنوں میں قرآن کریم ختم کیا جائے اس کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ جو انسان آسانی سے پڑھ سکے وہ پڑھے۔ حدیث نمبر 5054 ترجمہ مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہا ہم کو عبید اللہ بن موسیٰ نے خبر دی، انہیں شیبان نے، انہیں یحییٰ بن ابی کثیر نے، انہیں بنی زہرہ کے مولی محمد بن عبدال الرحمن نے، انہیں ابو سلمہ بن عبدال الرحمن نے، یحییٰ نے کہا اور میں خیال کرتا ہوں شاید میں نے یہ حدیث خود ابو سلمہ سے سنی ہے بلا واسطہ محمد بن عبدال الرحمن کے، خیر ابو سلمہ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ہر مہینے میں قرآن کا 1 ختم کیا کرو۔ میں نے عرض کیا مجھ کو تو زیادہ پڑھنے کی طاقت ہے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा 7 रातों में ख़त्म किया करो, इससे ज़्यादा मत पढ़। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान शरीफ पढ़ते वक्त रोने का बयान। हदीस नंबर 5055। तर्जुमा हमसे सदक़ा बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कहा हमको यही बिन सईद ने ख़बर दी, इन्हीं सुफियान सोरी ने, इन्हीं सुलेमान ने, इन्हीं इब्राहिम नख़ी ने, इन्हीं अबीदा सलमानी ने और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन मसूद ने, यही बिन क़ितान ने कहा इस हदीस का कुछ टुकड़ा अमिश ने इब्राहिम से सुना है कि मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया। दूसरी सनद हमसे मसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही क़ितान ने, उनसे सुफियान सोरी ने, उनसे आमिश ने, उनसे इब्राहिम ने, उनसे अबीदा सलमानी ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने। आमिश ने बयान किया कि मैंने इस हदीस का एक टुकड़ा तो ख़ुद इब्राहिम से सुना और एक टुकड़ा इस हदीस का मुझसे इमरू बिन मरा ने नकल किया, उनसे इब्राहिम ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अबुल्हा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने कुरान मजीद की तिलावत करो। मैंने अर्ज़ किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैं क्या तिलावत करूं, आप पर तो कुरान मजीद नाज़ल ही होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चाहता हूं कि किसी और से सुनूं। रावी ने बयान किया कि फिर मैंने सूरत निसा पढ़ी और जब मैं आयत फ़िकी फ़ज़ा जिना मन कल आमा बशीद व जना बकली हौला शहीदा पर पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठहर जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ फरमाया, या आमसक रावी को शक है। मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू बह रहे थे। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब कुरान शरीफ पढ़ते वक्त रोने का बयान। हदीस नंबर 5056। तर्जुमा हमसे कैस बिन हिफ्स ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल वाहिद ने बयान किया, कहा हमसे आमिश ने बयान किया, उनसे इब्राहिम ने बयान किया, उनसे अबीदा सलमानी ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कुरान मजीद पढ़कर सुनाओ। मैंने अर्ज़ किया मैं सुनाऊं, आप पर तो कुरान मजीद नाज़ल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं किसी से सुनना महबूब रखता हूँ। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब लोगों को दिखाने, दुनिया कमाने या फ़ख्र के तौर पर कुरान पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 5057। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, कहा हमको सुफियान सोरी ने ख़बर दी, कहा हमसे आमिश ने बयान किया, उनसे क़ासिमा बिन अबदाल रहमन कोफ़ी ने, उनसे सैयद बिन गफला ने और उनसे अली ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माना में एक कौम पैदा होगी नौजवानों और कम अक़लों की। ये लोग ऐसा बेहतरीन कलाम पढ़ेंगे जो बेहतरीन ख़ल्क़ का पैगंबर का है, या ऐसा कलाम पढ़ेंगे जो सारे ख़ल्क़ के कलामों से अफजल है। यानी हदीस या आयत पढ़ेंगे, इससे सनद लाएंगे, लेकिन इस्लाम से वो इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को पार करके निकल जाता है। उनका ईमान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। तुम इन्हीं जहाँ भी पाओ कत्ल कर दो, क्योंकि उनका कत्ल क़यामत में उस शख्स के लिए बाइस अजर होगा जो इन्हें कत्ल कर देगा। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब लोगों को दिखाने, दुनिया कमाने या फ़ख्र के तौर पर कुरान पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 5058। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, इन्हीं यही बिन सईद अंसारी ने, इन्हीं मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन हारिस तीमी ने, इन्हीं अबू सलीमा बिन अबदाल रहमन ने और उनसे अबू सईद ख़दरी ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में एक कौम ऐसी पैदा होगी कि तुम अपनी नमाज को उनकी नमाज के मुकाबला में हक़ीर समझोगे, उनके रोज़ों के मुकाबला में तुम्हें अपने रोज़े और उनके अमल के मुकाबला में तुम्हें अपना अमल हक़ीर नज़र आएगा, और वो कुरान मजीद की तिलावत भी करेंगे लेकिन कुरान मजीद उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। दीन से वो इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को पार करते हुए निकल जाता है, और वो भी इतनी सफाई के साथ कि तीर चलाने वाला तीर के फल में देखता है तो उसमें भी शिकार के खून वगैरह का कोई असर नज़र नहीं आता। इससे ऊपर देखता है वहाँ भी कुछ नज़र नहीं आता। तीर के पर को देखता है और वहाँ भी कुछ नज़र नहीं आता, बस सोफार में कुछ शुबह गुजरता है। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब लोगों को दिखाने, दुनिया कमाने या फ़ख्र के तौर पर कुरान पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 5059। तर्जुमा
हमसे मसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे यही क़ितान ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, उनसे अनस बिन मालिक ने और उनसे अबू मूसा अशअरी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मोमिन की मिसाल जो कुरान मजीद पढ़ता है और इस पर अमल भी करता है मीठे लेमन की सी है जिसका मज़ा भी लज़्ज़तदार और खुशबू भी अच्छी, और वो मोमिन जो कुरान पढ़ता तो नहीं लेकिन इस पर अमल करता है उसकी मिसाल खजूर की है जिसका मज़ा तो उम्दा है लेकिन खुशबू के बग़ैर, और इस मुनाफिक की मिसाल जो कुरान पढ़ता है रेहान की सी है जिसकी खुशबू तो अच्छी होती है लेकिन मज़ा कड़वा होता है, और इस मुनाफिक की मिसाल जो कुरान भी नहीं पढ़ता अंदराइन के फल की सी है जिसका मज़ा भी कड़वा होता है। रावी को शक है कि लफ्ज़ मर है या खबीस और इसकी बू भी ख़राब होती है। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब दिल लगने तक कुरान शरीफ पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 5060। तर्जुमा हमसे अबुल-नुमान ने बयान किया, कहा हमसे हमाद ने बयान किया, उनसे अबू इमरान जूनी ने और उनसे जंदब बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद इस वक्त तक पढ़ो जब तक उसमें दिल लगे, जब जी अचाट होने लगे तो पढ़ना बंद कर दो। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब दिल लगने तक कुरान शरीफ पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 5061। तर्जुमा हमसे इमरू बिन अली फलास ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल रहमान बिन महदी ने बयान किया, उनसे सलाम बिन अबी मुती ने बयान किया, उनसे अबू इमरान जूनी ने और उनसे जंदब बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कुरान को जब ही तक पढ़ो जब तक तुम्हारे दिल मिले जले या लगे रहें। जब इख्तिलाफ और झगड़ा करने लगो तो उठ खड़े हो। कुरान मजीद पढ़ना मौकूफ़ कर दो। सलाम के साथ इस हदीस को हारिस बिन उबैद और सईद बिन ज़ैद ने भी अबू इमरान जूनी से रिवायत किया और हमाद बिन सलमा और अबान ने उसको मरफू नहीं बल्कि मौक़ूफ़ा रिवायत किया है, और गंदर मोहम्मद बिन जाफ़र ने भी शोबा से, इन्होंने अबू इमरान से यूँ रिवायत किया कि मैंने जंदब से सुना, वो कहते थे, लेकिन मौक़ूफ़ा रिवायत किया, और अब्दुल्लाह बिन औन ने उसको अबू इमरान से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन सामत से, इन्होंने उम्र से उनका कौल रिवायत किया, मरफूआ नहीं किया, और जंदब की रिवायत ज़्यादा सही है। सही बुखारी किताब फ़िज़ाइल कुरान बाब दिल लगने तक कुरान शरीफ पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 5062। तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने, उनसे अब्दुल मलक बिन मैसरा ने, उनसे निज़ाल बिन सबरा ने कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने एक साहब अबी बिन कब को एक आयत पढ़ते सुना, वही आयत इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके खिलाफ सुनी थी। इब्न मसूद ने बयान किया कि फिर मैंने उनका हाथ पकड़ा और इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोनों सही हो, इसलिए अपने अपने तौर पर पढ़ो। शोबा कहते हैं कि मेरा गालिब गुमान यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इख्तिलाफ वाओ मुज़ाना किया करो, क्योंकि तुमसे पहले की इम्मतों ने इख्तिलाफ किया और उसी वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें हलाक कर दी। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब निकाह की तरगीब का बयान, क्योंकि फरमान अलही है फ़ानकहवा माताब लकम मन अलनिसा, इस पर सनद है। हदीस नंबर 5063। तर्जुमा हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, कहा हमको मोहम्मद बिन जाफ़र ने ख़बर दी, कहा हमको हमीद बिन अबी हमीद तबील ने ख़बर दी, इन्होंने अनस बिन मालिक से सुना, इन्होंने बयान किया कि तीन हज़रात अली बिन अबी तालिब, अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास और उस्मान बिन मज़ून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात के घरों की तरफ आपकी इबादत के मुताल्लिक़ पूछने आए। जब इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बताया गया तो जैसे इन्होंने उसे कम समझा और कहा कि हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया मुकाबला, आपकी तो तमाम अगली पिछली लग़्ज़िशें मुआफ़ कर दी गई हैं। इनमें से एक ने कहा कि आज से मैं हमेशा रात भर नमाज़ पढ़ा करूँगा। दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा रोज़े से रहूँगा और कभी नागा नहीं होने दूँगा। तीसरे ने कहा कि मैं औरतों से जुदाई इख्तियार कर लूँगा और कभी निकाह नहीं करूँगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उनसे पूछा क्या तुमने ही ये बातें कही हैं? सुन लो, अल्लाह ताला की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं तुम सबसे ज़्यादा डरने वाला हूँ। मैं तुम में सबसे ज़्यादा परहेज़गार हूँ, लेकिन मैं अगर रोज़े रखता हूँ तो इफ्तार भी करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ रात में और सोता भी हूँ, और मैं औरतों से निकाह करता हूँ। फमन रगबन सुनती फिलिस मनी मेरे तरीक़े से, जिसने बेरग़बती की वो मुझमें से नहीं है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब निकाह की तरगीब का बयान, क्योंकि फरमान अलही है फ़ानकहवा माताब लकम मन अलनिसा, इस पर सनद है। हदीस नंबर 5064। तर्जुमा
हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, इन्होंने हस्सान बिन इब्राहीम से सुना, इन्होंने यूनुस बिन यजीद एली से, उनसे ज़हरी ने कहा मुझको रू बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी और इन्होंने आयशा से अल्लाह ताला के इस इरशाद वन फ़फ्तमान ला तक़िस्तु फ़ी अली तामी फ़ान कहवा मा ताब लकम मन अलनिसा मसना वसलस वरबा फ़ान फ़फ्तमान ला तदलवा फ़वाहिद ताब मा मलकत आयमान कम ज़लक आदनी आन ला तूलू के मुताल्लिक़ पूछा, और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीमों से इंसाफ ना कर सकोगे तो जो औरतें तुम्हें पसंद हों उनसे निकाह कर लो, 2-2 से, ख्वाह 3-3 से, ख्वाह 4-4 से, लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही पर बस करो या जो लौंडी तुम्हारी मुल्क में हो, इस सूरत में कभी उम्मीद है कि तुम जुल्म व ज़ियादती ना कर सकोगे। आयशा ने कहा, भांजे, आयत में ऐसी यतीम मालदार लड़की का जिक्र है जो अपने वली की परवरिश में हो, वो लड़की के माल और इसके हुस्न की वजह से उसकी तरफ माइल हो और इससे मामूली महर पर शादी करना चाहता हो, तो ऐसे शख्स को इस आयत में ऐसी लड़की से निकाह करने से मना किया गया है। हम अगर इसके साथ इंसाफ कर सकता हो और पूरा महर अदा करने का इरादा रखता हो तो इजाज़त है, वरना ऐसे लोगों से कहा गया है कि अपनी परवरिश में यतीम लड़कियों के सिवा और दूसरी लड़कियों से शादी कर ली। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान की शादी की क़ुव्वत रखने पर निकाह कर लो, जिसका मतलब यह है जिस किसी में जिमा की ताकत हो वो निकाह कर ले, क्योंकि निगाह को पराई औरत को देखने से नचा कर देता है और हराम से बचाता है। जिसको निकाह की हाजत ना हो उसे निकाह ज़रूरी नहीं। हदीस नंबर 5065। तर्जुमा। हमसे उम्र बिन हिफ्स ने बयान किया, मुझसे इब्राहीम ने बयान किया, उनसे अमिश ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्राहीम ने बयान किया, उनसे अलक़मा बिन कैस ने बयान किया कि मैं अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथ था, उनसे उस्मान ने मुनी में मुलाकात की और कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, मुझे आपसे एक काम है। फिर वो दोनों तन्हाई में चले गए। उस्मान ने इनसे कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, क्या आप मंजूर करेंगे कि हम आपका निकाह किसी कुंवारी लड़की से कर दें जो आपको गुजरे हुए अय्याम याद दिला दे? चूँकि अब्दुल्ला इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने मुझे इशारा किया और कहा, अलक़मा। मैं जब उनकी खिदमत में पहुंचा तो वो कह रहे थे कि अगर आपका ये मशवरा है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया था, ए नौजवानों, तुम में जो भी शादी की ताकत रखता हो उसे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ख्वाहिश नफसानी को तोड़ देगा। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब शादी की ताकत ना होने पर रोज़ा रखने का बयान। हदीस नंबर 5066। तर्जुमा। हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा हमसे अमिश ने बयान किया, कहा कि मुझसे अमारा ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन यजीद ने बयान किया, कहा कि मैं अलक़मा और रसूद रहमहम अल्लाह के साथ अब्दुल्लाह बिन मसूद की खिदमत में हाजिर हवा। इन्होंने हमसे कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में नौजवान थे और हमें कोई चीज़ मैसर नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि नौजवानों की जमात तुम में जिसे भी निकाह करने के लिए माली ताकत हो उसे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ये नज़र को नेची रखने वाला और शर्मगा की हिफाजत करने वाला अमल है। और जो कोई निकाह की बूझा क़ुर्बत ताकत ना रखता हो उसे चाहिए कि रोज़ा रखे, क्योंकि रोज़ा इसकी ख्वाहिशात नफसानी को तोड़ देगा। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब कई शादियाँ करने का बयान। हदीस नंबर 5067। तर्जुमा। हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमको हश्शाम बिन यूसुफ ने ख़बर दी, इन्हें इब्न जरेज ने ख़बर दी, कहा कि मुझे अता बिन अबी रबा ने ख़बर दी, कहा कि हम इब्न अब्बास के साथ उम्मुल मोमिनीन मैमूना के जनाजा में शरीक थे। इब्न अब्बास ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा ही जब तुम उनका जनाजा उठाओ तो ज़ोर ज़ोर से हरकत ना देना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता नरमी के साथ जनाजा को लेकर चलना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी वफ़ात के वक्त आपके निकाह में 9 बीवियाँ थीं। 8 के लिए तो आपने बारी मुकर्रर कर रखी थी, लेकिन एक की बारी नहीं थी। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब कई शादियाँ करने का बयान। हदीस नंबर 5068। तर्जुमा। हमसे मुसद्दिद ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, कहा हमसे सईद ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, उनसे अनस ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक ही रात में अपनी तमाम बीवियों के पास गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 बीवियाँ थीं। इमाम बुखारी रा ने कहा कि मुझसे खलीफा इब्न ख़यात ने बयान किया, कहा हमसे सईद ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस ने बयान किया, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर यही हदीस बयान की। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब कई शादियाँ करने का बयान। हदीस नंबर 5069। तर्जुमा।
हमसे अली बिन हुक्म अंसारी ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे रक़बा ने, उनसे तलहा अलैमी ने, उनसे सईद बिन जबीर ने बयान किया कि मुझसे इब्न अब्बास ने दरियाफ्त फरमाया कि तुमने शादी कर ली है। मैंने अर्ज़ किया कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी कर लो, क्योंकि इस उम्मत के बेहतरीन शख्स जो थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बहुत सी बीवियाँ थीं। बाज़ों ने यूँ तर्जुमा किया है कि इस उम्मत में अच्छे वही लोग हैं जिनकी बहुत औरतें हों। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब, जिस किसी ने औरत के निकाह के लिए या किसी और काम के लिए हिजरत की, उसको इसकी नीयत के मुताबिक सवाब मिलेगा। हदीस नंबर 5070। तर्जुमा। हमसे यही बिन क़ज़िया ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे यही बिन सईद ने, उनसे मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन हारिस ने, उनसे अलक़मा बिन वक़ास ने और उनसे उम्र बिन ख़िताब ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमल का दारोमदार नीयत पर है और हर शख्स को वही मिलता है जिसकी वो नीयत करे। इसलिए जिसकी हिजरत अल्लाह और इसके रसूल की रज़ा हासिल करने के लिए हो, उसे अल्लाह और इसके रसूल की रज़ा हासिल होगी, लेकिन जिसकी हिजरत दुनिया हासिल करने की नीयत से या किसी औरत से शादी करने के इरादा से हो, इसकी हिजरत उसी के लिए है जिसके लिए उसने हिजरत की। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब, तंदुरुस्त मुसलमान जो कुरान करीम जानता हो, इसका निकाह करा देने का बयान। इसमें सहल की रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। हदीस नंबर 5071। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल ने बयान किया, उनसे कैस ने बयान किया और उनसे इब्न मसूद ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद किया करते थे और हमारे साथ बीवियाँ नहीं थीं। इसलिए हमने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम अपने आप को खसी क्यों ना कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना फरमाया। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब, एक मुसलमान का अपने मुसलमान भाई से ये कहना कि देख लो तुम्हें मेरी कौन सी बीवी पसंद है ताकि मैं उसे छोड़ दूँ। इसको अब्दाल रहमान बिन औफ ने रिवायत किया है। हदीस नंबर 5072। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने, उनसे हमीद तवील ने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना, बयान किया कि अब्दाल रहमान बिन औफ हिजरत करके मदीना आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके और साद बिन रबी अंसारी के दरमियान भाईचारा कराया। साद अंसारी के निकाह में 2 बीवियाँ थीं। इन्होंने अब्दाल रहमान से कहा कि वो उनके अहल, बीवी और माल में से आधे लें। इस पर अब्दाल रहमान ने कहा कि अल्लाह ताला आपके अहल और आपके माल में बरकत दे, मुझे तो बाजार का रास्ता बता दो। चुनाचा आप बाजार आए और यहाँ आपने कुछ पनीर और कुछ घी की तिजारत की और नफ़ा कमाया। चंद दिनों के बाद उन पर ज़फ़रान की ज़रदी लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि अब्दाल रहमान ये किया है। इन्होंने अर्ज़ किया कि मैंने एक अंसारी खातून से शादी कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि इन्हें महर में किया दिया। अर्ज़ किया कि एक गठली बराबर सोना दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर वलीमा कर, अगरचे एक बकरी ही का हो। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब, मुजर्रद रहने और अपने तई नामरद बनाने की कराहत। हदीस नंबर 5073। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, कहा हमको इब्न शहाब ने खबर दी, इन्होंने सईद बिन मुसैयब से सुना, वो कहते हैं कि मैंने साद बिन अबी वक़ास से सुना, इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबतल यानी औरतों से अलग रहने की ज़िंदगी से मना फरमाया था। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इजाज़त दे देते तो हम तो खसी ही हो जाते। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब, मुजर्रद रहने और अपने तई नामरद बनाने की कराहत। हदीस नंबर 5074। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, कहा मुझे सईद बिन मुसैयब ने खबर दी और इन्होंने साद बिन अबी वक़ास से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मज़ून को औरत से अलग रहने की इजाज़त नहीं दी थी। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इसकी इजाज़त दे देते तो हम भी अपने आप को खसी बना लेते। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब, मुजर्रद रहने और अपने तई नामरद बनाने की कराहत। हदीस नंबर 5075। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने, उनसे इस्माइल बिन अबी खालिद बिजली ने, उनसे कैस बिन अबी हाज़िम ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद को जाया करते थे और हमारे पास रुपया ना था कि हम शादी कर लेते, इसलिए हमने अर्ज़ किया हम अपने को खसी क्यों ना करा लें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना फरमाया।
फिर हमें इसकी इजाज़त दे दी कि हम किसी औरत से एक कपड़े पर एक मुद्दत तक के लिए निकाह कर लें। आपने हमें कुरान मजीद की ये आयत पढ़कर सुनाई, या आयहा अलजीन आमन वाला तहरमु तैबात मा आहल अल्लाह लकम वला तैतिदवाउन अल्लाह ला यहबल मुतदीन की ईमान लाने वालों, वो पाकीज़ा चीज़ें मत हराम करो जो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने हलाल की हैं, और हद से आगे ना बढ़ो, बेशक अल्लाह हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब मुजर्रद रहने और अपने तईन नामर्द बनाने की कराहत। हदीस नंबर 5076। तर्जुमा। और रस्ब ने कहा कि मुझे इब्न वहब ने खबर दी, इन्हीं यूनुस बिन यजीद ने, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं अबू सलिमा ने, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं नौजवान हूँ और मुझे अपने पर जिना का खौफ रहता है। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर मैं किसी औरत से शादी करूँ। आप मेरी ये बात सुनकर खामोश रहे। दोबारा मैंने अपनी यही बात दोहराई, लेकिन आप इस मर्तबा भी खामोश रहे। 12 मैंने अर्ज़ किया, आप फिर भी खामोश रहे। मैंने चौथी मर्तबा अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हरीरा, जो कुछ तुम करोगे उसे लूह महफूज में लिखकर कलम खुश्क हो चुका है। ख्वाह अब तुम फसीह हो जाओ या बाज रहो, यानी फसीह होना बेकार महज है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब कुंवारी लड़की से निकाह करने का बयान। इब्न अबी मलीका कहते हैं कि इब्न अब्बास ने हज़रत आयशा रिज़्क़ से कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके अलावा किसी कुंवारी से निकाह नहीं किया। हदीस नंबर 5077। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे भाई अबदाल हमीद ने बयान किया, उनसे सुलेमान बिन बिलाल ने, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने, और उनसे आयशा ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फरमाइए अगर आप किसी वादी में उतरी और इसमें एक दरख्त ऐसा हो जिसमें ऊँट चुर गए हों और एक दरख्त ऐसा हो जिसमें से कुछ भी ना खाया गया हो, तो आप अपना ऊँट इन दरख्तों में से किस दरख्त में चराएंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दरख्त में जिसमें से अभी चराया नहीं गया हो। उनका इशारा इस तरफ था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सिवा किसी कुंवारी लड़की से निकाह नहीं किया। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब कुंवारी लड़की से निकाह करने का बयान। इब्न अबी मलीका कहते हैं कि इब्न अब्बास ने हज़रत आयशा रिज़्क़ से कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके अलावा किसी कुंवारी से निकाह नहीं किया। हदीस नंबर 5078। तर्जुमा। हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे उसामा ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने, और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, मुझे ख्वाब में 2 मरतबा तुम दिखाई गईं। एक शख्स जबराइल तुम्हारी सूरत हरीर के एक टुकड़े में उठाए हुए है और कहता है कि ये आपकी बीवी है। मैंने जो इस कपड़े को खोला तो इसमें तुम थीं। मैंने ख्याल किया कि अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो वो उसे ज़रूर पूरा करके रहेगा। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब सीबा यानी बेवा से शादी करने का बयान। और हबीबा फरमाती हैं कि मुझसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बीबी, मुझ पर अपनी बहनें और बेटियों निकाह के लिए पेश ना करो, क्योंकि वो शरा मुझ पर हराम हैं। हदीस नंबर 5079। तर्जुमा। हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, कहा हमसे हश्शीम ने बयान किया, कहा हमसे सैयार बिन अबी सैयार ने बयान किया, उनसे आमिर शुबी ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जिहाद से वापस हो रहे थे। मैं अपने ऊँट को, जो सुस्त था, तेज़ चलाने की कोशिश कर रहा था। इतने में मेरे पीछे से एक सवार मुझसे आकर मिला और अपना नेज़ा मेरे ऊँट को चबू दिया। इसकी वजह से मेरा ऊँट तेज़ चल पड़ा, जैसा कि किसी उम्दा कस्म के ऊँट की चाल तुमने देखी होगी। अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, जल्दी क्यों कर रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि कुंवारी से या बेवा से? मैंने अर्ज़ किया कि बेवा से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि किसी कुंवारी से क्यों ना कि तुम इसके साथ खेलकूद करते और वो तुम्हारे साथ करती। बयान किया कि फिर जब हम मदीना में दाखिल होने वाले थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि थोड़ी देर ठहर जाओ और रात हो जाए तब दाखिल हो, ताकि परेशान बालों वाली कनघा कर लेवे और जिनके शौहर मौजूद नहीं थे वो अपने बाल साफ कर लीं। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब सीबा यानी बेवा से शादी करने का बयान। और हबीबा फरमाती हैं कि मुझसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बीबी, मुझ पर अपनी बहनें और बेटियों निकाह के लिए पेश ना करो, क्योंकि वो शरा मुझ पर हराम हैं। हदीस नंबर 5080। तर्जुमा।
हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे महारिब बिन दिसार ने बयान किया, कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना, इन्होंने अर्ज़ किया कि मैंने शादी की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ्त फरमाया कि किससे शादी की है। मैंने अर्ज़ किया कि एक औरत से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुंवारी से क्यों ना की कि इसके साथ तुम खेल कूद करते। महारिब ने कहा कि फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद इमरू बिन दीनार से बयान किया तो इन्होंने कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना है। मुझसे इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इस तरह बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि तुमने किसी कुंवारी औरत से शादी क्यों ना की कि तुम इसके साथ खेल कूद करते और वो तुम्हारे साथ खेलती। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब छोटी उम्र वाली का बड़ी उम्र वाले से निकाह करने का बयान। हदीस नंबर 5081। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने, उनसे यजीद बिन हबीब ने, उनसे अराक बिन मालिक ने और उनसे रूने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से शादी के लिए अबू बकर सिद्दीक़ से कहा। अबू बकर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मैं आपका भाई हूँ, तो आयशा से कैसे निकाह करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के दीन और इसकी किताब पर ईमान लाने के रिश्ता से तुम मेरे भाई हो और आयशा मेरे लिए हलाल है। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब किस औरत से निकाह करे और कौन सी औरतें उम्दा हैं और अपनी नस्ल के लिए उम्दा औरत के इंतखाब का बयान। हदीस नंबर 5082। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोबा ने खबर दी, उनसे अबुल जनाद ने बयान किया, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन पर सवार होने वाली अरब औरतों में बेहतरीन औरत कुरैश की सालेह औरत होती है जो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली और अपने शौहर के माल असबाब में उसकी बहुत उम्दा निगहबान व निगरान साबित होती है। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब बांदियों से मोहब्बत करने और बानदी को आज़ाद करके इससे निकाह करने की बरतरी का बयान। हदीस नंबर 5083। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वहद बिन ज़ियाद ने, कहा हमसे सालेह बिन सालेह हमदानी ने, कहा हमसे आमिर शुबी ने, कहा कि मुझसे अबू बरदा ने बयान किया अपने वालिद से, इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के पास लौंडी हो वो उसे तालीम दे और खूब अच्छी तरह दे, उसे अदब सिखाए और पूरी कोशिश और मेहनत के साथ सिखाए और इसके बाद इसे आज़ाद करके इससे शादी कर ले तो उसे दोहरा सवाब मिलता है। और अहल किताब में से जो शख्स भी अपने नबी पर ईमान रखता हो और मुझ पर ईमान लाए तो उसे दोहरा सवाब मिलता है, और जो गुलाम अपने आका के हुकूक भी अदा करता है और अपने रब के हुकूक भी अदा करता है उसे दोहरा सवाब मिलता है। आमिर शुबी ने अपने शागिर्द से इस हदीस को सुनाने के बाद कहा कि बग़ैर किसी मशक्क़त और मेहनत के उसे सीख लो। इससे पहले तालिब इल्म को इस हदीस से कम के लिए भी मदीना तक का सफ़र करना पड़ता था। और अबू बकर ने बयान किया अबू सीन से, उसने अबू बरदा से, उसने अपने वालिद से और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उस शख्स ने बानदी को निकाह करने के लिए आज़ाद कर दी और यही आज़ादी इसका महर मुकर्रर की। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब बांदियों से मोहब्बत करने और बानदी को आज़ाद करके इससे निकाह करने की बरतरी का बयान। हदीस नंबर 5084। तर्जुमा। हमसे सईद बिन तलीद ने बयान किया, कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन वहब ने खबर दी, कहा कि मुझे जरीर बिन हाजिम ने खबर दी, इन्हीं अयूब सख्तियानी ने, इन्हीं मोहम्मद बिन सरीन ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दूसरी सनद हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, उनसे हमाद बिन जैद ने, उनसे अयूब सख्तियानी ने, उनसे मोहम्मद बिन सरीन ने और उनसे अबू हरीरा ने कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान से 3 मरतबा के सिवा कभी दीन में झूठ बात नहीं निकली। एक मरतबा आप एक जालिम बादशाह की हुकूमत से गुजरे, आपके साथ आपकी बीवी सारा अलैहिस्सलाम थीं। फिर पूरा वाक़या बयान किया कि बादशाह के सामने आपने सारा अलैहिस्सलाम को अपनी बहन यानी देनी बहन कहा। फिर इस बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को हाजिरा को दे दिया। बीबी सारा अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह ताला ने काफिर के हाथ को रोक दिया और हाजिरा को मेरी खिदमत के लिए दलवा दिया। अबू हरीरा ने बयान किया कि ए आसमान के पानी के बेटू यानी ए अरब वालों, यही हाजिरा अलैहिस्सलाम तुम्हारी मोही। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब बांदियों से मोहब्बत करने और बानदी को आज़ाद करके इससे निकाह करने की बरतरी का बयान। हदीस नंबर 5085। तर्जुमा।
हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे हमीदी ने और उनसे अनस ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर और मदीना के दरमियान 3 दिन तक क़याम किया और यहीं उम्मुल मोमिनीन सफ़ी बिन हयी के साथ खलवत की। फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमा की मुसलमानों को दावत दी। इस दावत वलीमा में ना तो रोटी थी और ना गोश्त था। दस्तरख़्वान बिछाने का हुक्म हुआ और इस पर खजूर, पनीर और घी रख दिया गया और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा था। बाज़ मुसलमानों ने पूछा कि सफ़ी अम्हात अल-मुमिनीन में से हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया है या लौंडी की हैसियत से आपने उनके साथ खलवत की है। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए पर्दा का इंतज़ाम फरमाएं तो इससे साबित होगा कि वो अम्हात अल-मुमिनीन में से हैं, और अगर उनके लिए पर्दा का एहतिमाम ना करें तो इससे साबित होगा कि वो लौंडी की हैसियत से आपके साथ हैं। फिर जब कुछ करने का वक्त हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अपनी सवारी पर बैठने के लिए जगह बनाई और उनके लिए पर्दा डाला ताकि लोगों को वो नज़र ना आए। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब लौंडी का आज़ाद करना ही इसका महर है। हदीस नंबर 5086। तर्जुमा। हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे साबित बनानी और शोएब बिन हबहब ने और उनसे अनस बिन मालिक ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ी को आज़ाद किया और उनकी आज़ादी को उनका महर करार दिया। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब नादार के निकाह करने के जुवाज़ के बयान में, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर वो नादार हैं तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से इन्हीं मालदार कर देगा। हदीस नंबर 5087। तर्जुमा। हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे सहल बिन साद सादी ने बयान किया कि एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में अपने आप को आपके लिए वक्फ़ करने हाजिर हुई हूँ। रावी ने बयान किया कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र उठाकर उसे देखा। फिर आपने नज़र को नीची कर ली और फिर अपना सर झुका लिया। जब इस औरत ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला नहीं फरमाया तो वो बैठ गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आपको उनसे निकाह की ज़रूरत नहीं है तो उनसे मेरा निकाह कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे पास महर के लिए कोई चीज़ है? इन्होंने अर्ज़ किया कि नहीं, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अपने घर जाओ और देखो, मुमकिन है तुम्हें कोई चीज़ मिल जाए। वो गए और वापस आ गए और अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, मैंने कुछ नहीं पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोहे की एक अंगूठी भी मिल जाए तो ले आओ। वो गए और वापस आ गए और अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, मेरे पास लोहे की एक अंगूठी भी नहीं, अलबत्ता मेरे पास एक तहमद है। इन्हीं खातून को इसमें से आधा दे दीजिए। सहल बिन साद ने बयान किया कि उनके पास चादर भी नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे इस तहमद का किया करेगी। अगर तुम उसे पहनोगे तो उनके लिए इसमें से कुछ नहीं बचेगा, और अगर वो पहन ले तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहेगा। इसके बाद वो सहाबी बैठ गए। काफ़ी देर तक बैठे रहने के बाद जब वो खड़े हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं देखा कि वो वापस जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं बुलवाया। जब वो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हें कुरान मजीद कितना याद है? इन्होंने अर्ज़ किया कि फ़लन सूरतें याद हैं। इन्होंने गिनकर बताएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम इन्हें बग़ैर देखे पढ़ सकते हो? इन्होंने अर्ज़ किया कि जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर जाओ, मैंने इन्हें तुम्हारे निकाह में दिया, इन सूरतों के बदले जो तुम्हें याद हैं। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब नसब व ख़ानदान में इस्लाम और देनदारी के लज़ूम का बयान। नसब व सहर और किफ़ू की तरफ इशारा है। किफ़ू और किफ़ायत के मानी नसब व ख़ानदान, सहर दामादगी। हदीस नंबर 5088। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने ख़बर दी, उनसे ज़हरी ने, इन्हीं रू बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी और इन्हीं आयशा ने कि अबू हज़ीफ़ा बिन अतबा बिन रबिया बिन अब्दुशमस महशम ने, जो इन सहाबा में से थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा बदर में शिरकत की थी, सालिम बिन माक़ल को ले पालक बेटा बनाया और फिर उनका निकाह अपने भाई की लड़की हिंदा बिन तलूलिद बिन अतबा बिन रबिया से कर दी।
पहले सालिम एक अंसारी खातून शबिया बिन्त यार के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, लेकिन हुज़ैफ़ा ने उनको अपना मुँह बोला बेटा बनाया था, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद को, जो आप ही के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, अपना ले पालक बेटा बनाया था। जाहिलियत के ज़माने में ये दस्तूर था कि अगर कोई शख्स किसी को ले पालक बेटा बना लेता तो लोग उसे उसी की तरफ निस्बत करके पुकारा करते थे और ले पालक बेटा इसकी मीरास में से भी हिस्सा पाता। आखिर जब सूरत अल-हिजरात में ये आयत उतरी, अदौहम लाबायहम के इन्हीं उनके हकीकी बापों की तरफ मंसूब करके पुकारू अल्लाह ताला के फरमान वमवालिकुम तक, तो लोग इन्हीं उनके बापों की तरफ मंसूब करके पुकारने लगे। जिसके बाप का इल्म न होता तो उसे मूली और देनी भाई कहा जाता। फिर सहला बिन्त सुहेल बिन इमरू अल-क़रशी समलामदी, जो अबू हज़ीफ़ा की बीवी ही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम तो सालिम को अपना हकीकी जैसा बेटा समझते थे, अब अल्लाह ने जो हुक्म उतारा वो आपको मालूम है। फिर आखिर तक हदीस बयान की। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब नसब व ख़ानदान में इस्लाम और देनदारी के लज़ूम का बयान। नसब व सहर और किफ़ू की तरफ इशारा है। किफ़ू और किफ़ायत के मानी नसब व ख़ानदान, सहर दामादगी। हदीस नंबर 5089। तर्जुमा। हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बाआ बिन्त ज़ुबैर के पास गए। ये ज़ुबैर अब्दाल मतलब के बेटे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, और उनसे फरमाया शायद तुम्हारा इरादा हज का है। इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, मैं तो अपने आप को बीमार पाती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि फिर भी हज का एहराम बांध ले, अलबत्ता शर्त लगा लेना और ये कह लेना कि अल्लाह, मैं उस वक्त हलाल हो जाऊंगी जब तो मुझे मर्ज़ की वजह से रोक लेगा। और ज़बाआ बिन्त ज़ुबैर क़ुरैशी मक़दाद बिन असूद के निकाह में थीं। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब नसब व ख़ानदान में इस्लाम और देनदारी के लज़ूम का बयान। नसब व सहर और किफ़ू की तरफ इशारा है। किफ़ू और किफ़ायत के मानी नसब व ख़ानदान, सहर दामादगी। हदीस नंबर 5090। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने, उनसे उबैदुल्लाह उमवी ने, कि मुझसे सईद बिन अबी सईद ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से निकाह 4 चीज़ों की बुनियाद पर किया जाता है, इसके माल की वजह से और इसके ख़ानदानी शर्फ़ की वजह से और इसकी खूबसूरती की वजह से और इसके दीन की वजह से, और तो दीनदार औरत से निकाह करके कामयाबी हासिल कर, अगर ऐसा ना करे तो तेरे हाथों को मिट्टी लगेगी, यानी आखिर में तुझको नदामत होगी। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब नसब व ख़ानदान में इस्लाम और देनदारी के लज़ूम का बयान। नसब व सहर और किफ़ू की तरफ इशारा है। किफ़ू और किफ़ायत के मानी नसब व ख़ानदान, सहर दामादगी। हदीस नंबर 5091। तर्जुमा। हमसे इब्राहीम बिन हमज़ा ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम ने, उनसे उनके वालिद सलमा बिन दीनार ने, उनसे सहल बिन साद सादी ने बयान किया कि एक साहब जो मालदार थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास मौजूद सहाबा से पूछा कि ये कैसा शख्स है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि ये इस लायक है कि अगर ये निकाह का पैगाम भेजे तो इससे निकाह किया जाए, अगर किसी की सिफारिश करे तो इसकी सिफारिश कबूल की जाए, अगर कोई बात कहे तो गौर से सुनी जाए। सहल ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर चुप हो रहे। फिर एक दूसरे साहब गुजरे जो मुसलमानों के गरीब और मुहताज लोगों में शुमार किए जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि इसके मुताल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि ये इस काबिल है कि अगर किसी के यहाँ निकाह का पैगाम भेजे तो इससे निकाह ना किया जाए, अगर किसी की सिफारिश करे तो इसकी सिफारिश कबूल ना की जाए, अगर कोई बात कहे तो इसकी बात ना सुनी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि ये शख्स अकेला पहले शख्स की तरह दुनिया भर से बेहतर है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब किफ़ायत में मालदारी का लिहाज और मफलस का मालदार औरत से निकाह का बयान। हदीस नंबर 5092। तर्जुमा। मुझसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, इन्हीं रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी कि इन्होंने आयशा से आयत वन ख़फ्तमान ला तक़िस्तु फ़ी अलितामी, और अगर तुम्हें खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे के मुताल्लिक सवाल किया। आयशा ने कहा, मेरे भांजे, इस आयत में इस यतीम लड़की का हुक्म बयान हुआ है जो अपने वली की परवरिश में हो और इसका वली इसकी खूबसूरती और मालदारी पर रजा कर ये चाहे कि इससे निकाह करे, लेकिन इसके महर में कमी करने का भी इरादा हो।
ऐसे वली को अपनी ज़ेर परवरिश यतीम लड़की से निकाह करने से मना किया गया है जब वो उनका महर इंसाफ से पूरा अदा करेंगे। अगर वो ऐसा ना करें तो फिर आयत में ऐसे वलियों को हुक्म दिया गया कि वो अपनी ज़ेर परवरिश यतीम लड़की के सिवा किसी और से निकाह कर लें। आयशा ने बयान किया कि लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बाद सवाल किया तो अल्लाह ताला ने सूरत निसा में आयत वस्तफ्तूनक फ़ी अल-निसा से वतरगबूनान तनखोहन तक नाज़ल की। इस आयत में अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया कि यतीम लड़कियां अगर खूबसूरत और साहब माल हों तो उनके वली भी उनके साथ निकाह कर लेना चाहते हैं, इसका ख़ानदान पसंद करते हैं और महर पूरा अदा करके उनसे निकाह कर लेते हैं। लेकिन उनमें हुस्न की कमी हो और माल भी ना हो तो फिर उनकी तरफ रग़बत नहीं होगी और वो इन्हें छोड़कर दूसरी औरतों से निकाह कर लेते हैं। आयशा ने कहा कि आयत का मतलब यह है कि जैसे उस वक्त यतीम लड़की को छोड़ देते हैं जब वो नादार हो और ख़ूबसूरत ना हो, ऐसे ही उस वक्त भी छोड़ देना चाहिए जब वो मालदार और ख़ूबसूरत हो। अलबत्ता अगर इसके हक़ में इंसाफ करें और इसका महर पूरा अदा करें तब इससे निकाह कर सकते हैं। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब औरत की नहुसत से परहेज़ करने का बयान और अल्लाह ताला का फरमान कि तुम्हारे बाज बचे और बीवी तुम्हारे लिए दुश्मन हैं। हदीस नंबर 5093। तर्जुमा हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र के साहिबजादे हमज़ा और सालिम ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहुसत औरत में, घर में और घोड़े में हो सकती है, नहुसत बेबरकती अगर हो तो उनमें हो सकती है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब औरत की नहुसत से परहेज़ करने का बयान और अल्लाह ताला का फरमान कि तुम्हारे बाज बचे और बीवी तुम्हारे लिए दुश्मन हैं। हदीस नंबर 5094। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मिनहाल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, उनसे उम्र बिन मोहम्मद असफ़लानी ने बयान किया, उनसे उनके वालिद और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहुसत का जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर नहुसत किसी चीज़ में हो तो घर, औरत और घोड़े में हो सकती है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब औरत की नहुसत से परहेज़ करने का बयान और अल्लाह ताला का फरमान कि तुम्हारे बाज बचे और बीवी तुम्हारे लिए दुश्मन हैं। हदीस नंबर 5095। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्हें इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हें अबू हाज़म ने और इन्हें सहल बिन साद सादी ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर नहुसत किसी चीज़ में हो तो घोड़े, औरत और घर में हो सकती है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब औरत की नहुसत से परहेज़ करने का बयान और अल्लाह ताला का फरमान कि तुम्हारे बाज बचे और बीवी तुम्हारे लिए दुश्मन हैं। हदीस नंबर 5096। तर्जुमा हमसे आदम ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे सुलेमान तीमी ने बयान किया, इन्होंने अबू उस्मान नहदी से सुना और इन्होंने उसामा बिन ज़ैद से रिवायत किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों के फितना से बढ़कर नुकसान देने वाला और कोई फितना नहीं छोड़ा है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब आज़ाद औरत का ग़ुलाम से निकाह करने का बयान। हदीस नंबर 5097। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं रबिया बिन अबू अब्दुर्रहमान ने, इन्हीं कासिम बिन मोहम्मद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि बरीरा के साथ 3 सुन्नत कायम होती हैं, इन्हें आज़ाद किया और फिर इख्तियार दिया गया कि अगर चाहें तो अपने शौहर साबिका से अपना निकाह फसख कर सकती हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा के बारे में फरमाया कि वला आज़ाद कराने वाले के साथ कायम हुई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो एक हांडी गोश्त की चूल्हे पर थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोटी और घर का सालन लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूल्हे पर हांडी गोश्त की भी तो मैंने देखी थी। अर्ज़ किया गया कि वो हांडी इस गोश्त की थी जो बरीरा को सदक़ा में मिला था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ा नहीं खाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इसके लिए सदक़ा है और अब हमारे लिए उनकी तरफ से तोहफ़ा है, हम इसे खा सकते हैं। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब 4 औरतों से ज़्यादा ना रखने का बयान। अल्लाह ताला का कौल 2-2 3-3 4-4 अली बिन हसीन फरमाते हैं इससे मुराद 2-2 3-3 या 4-4 हैं, मजमुआ मुराद नहीं। और अल्लाह ताला का फरमान औली अजनत मसना वसलसा वरबा यानी 2-2 या 3-3 या 4-4। हदीस नंबर 5098। तर्जुमा
हमसे मोहम्मद बिन सलाम बैकंदी ने बयान किया, कहा हमको अब्दा ने खबर दी, इन्हीं हिशाम ने, इन्हीं उनके वालिद ने और इन्हीं आयशा ने अल्लाह ताला के इरशाद वन फ़फ्तमान ला तक़िस्तु फ़ी अलितामी, और अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकोगे के बारे में फरमाया कि इससे मुराद यतीम लड़की है जो अपने वली की परवरिश में हो। वली उससे इसके माल की वजह से शादी करते और अच्छी तरह इससे सलूक ना करते और ना इसके माल के बारे में इंसाफ करते, ऐसे शख्सों को ये हुक्म हुआ कि इस यतीम लड़की से निकाह ना करें, बल्कि इसके सिवा जो औरतें भली लगी उनसे निकाह कर लीं। 2-2, 3-3 या 4-4 तक की इजाज़त है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब दूध पिलाने वाली मां का बयान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि जो रिश्ते नसब की वजह से हराम होते हैं वो रज़ाअत की वजह से भी हराम हो जाता हैं। हदीस नंबर 5099। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबू बकर ने, उनसे उमरा बिन तबदाल रहमन ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ रखते थे और आपने सुना कि कोई साहब उम्मुल मोमिनीन हिफ्सा के घर में अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये शख्स आपके घर में आने की इजाज़त चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ख्याल है कि ये फ़लन शख्स है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफ्सा के एक दूध के चचा का नाम लिया। इस पर आयशा ने पूछा, किया फ़लन जो उनके दूध के चचा थे अगर जिंदा होते तो मेरे यहाँ जा सकते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम जैसे खून मिलने से हुर्मत होती है वैसे ही दूध पीने से भी हुर्मत साबित हो जाती है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब दूध पिलाने वाली मां का बयान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि जो रिश्ते नसब की वजह से हराम होते हैं वो रज़ाअत की वजह से भी हराम हो जाता हैं। हदीस नंबर 5100। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे शोबा ने, उनसे क़तादा ने, उनसे जाबिर बिन ज़ैद ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप हमज़ा की बेटी से निकाह क्यों नहीं कर लेते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरे दूध के भाई की बेटी है। और बशर बिन उम्र ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, इन्होंने क़तादा से सुना और इन्होंने उसी तरह जाबिर बिन ज़ैद से सुना।